वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियावी हम-मनसब से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानी कम्युनिटी के एक प्रोग्राम से भी खिताब किया। उन्होंने इस सफर को लेकर एक ट्वीट भी किया। हिंदुस्तानी कम्युनिटी ने सिडनी पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का वालहाना इस्तकबाल किया। आइंदा 2 दिनों में पीएम मोदी कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सिडनी में सनत और सरमायाकारी फर्मों के सरबराहों से भी मुलाकात करेंगे। लगातार हमने देखा कि दोनों नेता अभी जापान में भी एक दूसरे के साथ मौजूद थे। वहां पे G7 की बैठक के समय क्वाड के मंच पर और द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी हमने देखने को मिला था। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया टीम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ सिडनी में 22 इयर्स से हूँ। And of course, all of us are excited for Modi ji to arrive. Yeah, that is the most important thing for us at the moment. I'm very eager. I have met him yesterday at the community reception and I'm really waiting to hear him talk. I'm from Seva, Australia, and I'm really waiting to see him talk today. Totally excited. We are just waiting for this from months and months with lots of preparation and lots of excitement. And we are glad that this moment has come and we are all here to celebrate it. Yeah, definitely we are just there at the moment now. We're very excited and we are gonna welcome him. So there are lots of cultural activities happening, cultural programs happening, and it's very nice. The organizing is really nice. So we enjoyed a few performances as well, and it's so good to see everyone coming together, and it feels like all India is here. So I performed today. I did a fusion of the First Nations and Bharatanatyam from India, and it was such a great experience, like dancing on the Kudas Bank Arena stage and all the other performance. It's so nice to see all the Indian culture. We are from Sydney, but from India we're from Bangalore, and we're quite excited. We're quite excited to see such a big event happening in Sydney, and we're excited to we were part of it as well, and this is what we showcase is both the Australian and the Indian culture. So I performed today. I did a fusion of the First Nations and Bharatanatyam from India, and it was such a great experience, like dancing on the Kudas Bank Arena stage and all the other performance. It's so nice to see all the Indian culture. सिडनी में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वालहाना इस्तकबाल किया गया। तकरीब के दौरान कश्मीरी रिवायती फोक डांस रूफ पेश किया गया।
कश्मीरी गाने और रफ डांस ने सामीन को महसूस किया। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया में कश्मीरियों की बड़ी तादाद मुकीम है। श्रीनगर में G20 मीटिंग का ये दूसरा दिन है। G20 ग्रुप ने ग्रीन टूरिज्म को फरोग देने पर जोर देते हुए सयाहत के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में नुमाइंदों से मुलाकात भी की। Since eternity, Jammu Kashmir is known as crown jewel of India, and today I would like to say that it is a matter of great pride for 13 million citizens of this union territory to host this G20 meeting of Tourism Working Group that is deliberating on global architecture for sustainable tourism. Friends, Jammu Kashmir has always been a center of wisdom, knowledge, inclusive culture and breathtaking landscape that is divine to travelers. Famous poet Amir Khusro, while describing the natural beauty of Jammu and Kashmir in 13th century, had said, and I quote, "Gar Firdaus barwe zamiyast hamiyasto hamiyasto hamiyast." If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. So it is not surprising that in the modern days, one of the oldest travel guidebook published at Lonely Planet chose to call Jammu Kashmir as Switzerland of India. Friends, for almost 30 years, this land of peaceful coexistence of almost all religious sects had to suffer state-sponsored terrorism by our neighboring country. However, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, through development schemes that empowers masses and union territories' effective administration, isolated the terror ecosystem which thrived with the support from across the border. Jammu Kashmir is witnessing a new era that has opened limitless possibilities of growth and peace. Now even foreign investments are also coming into Jammu and Kashmir. Green shoots of better times people are anxiously looking up to. Friends, I will run you through broad contours of our deep dive initiative to demonstrate India's resolve that Jammu Kashmir should also benefit from the virtues of democracy like the rest of the states and union territory. Equally pertinent is that tourism cannot grow in isolation. The economics of it is fine. The tourism needs good infrastructure, sound policies and effective and responsive governance. No less fundamental to me is the fact that only peace and happiness of people can bring warmth in the hospitality we Indians eternally enjoy. And I would like to mention here that tourism in Jammu Kashmir is also a reflection of multi-religious and multicultural ethos of India. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास से खिताब किया। G20 के हवाले से खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक सुनहरा अवसर है। कश्मीर की संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में G20 सरबराही इजलास से कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद में इजाफा होगा। गैर मुल्की सयाहों ने कहा कि G20 में मंदुबीन ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर सकते हैं और पूरी दुनिया में एक मुस्बत पैगाम भेज सकते हैं। G20 समिट इस वक्त जारी है और जो फोकस है वो फिल्म टूरिज्म पर है। और हम आपको बता दें कि जो पिछला साल गुजरा है उसमें टूरिज्म बूम देखने को मिला और रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट कश्मीर जो है विजिट किया। लेकिन उसमें एक बात ये रही कि जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल था वो कम रहा और फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ की तरफ रागिब करने के लिए सरकार क्या करेगी वो देखने लायक बात होगी। और यकीनी तौर पर G20 समिट में इन बातों को भी छेड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फ्लो है इंटरनेशनल टूरिस्ट का वो बढ़ जाए। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए क्या कहना चाहेंगे जो अभी आप यहाँ पर। सर, मेरा नाम विकास है और मैं यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है, श्रीनगर बहुत अच्छी जगह है और जो बात हमने सुन रखी थी पहले उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ सेफ है और यहाँ पे मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप आएँ और श्रीनगर की खूबसूरती देखें। Hi, my name is Kamil. I live in UK, but I'm from Poland. We came for some holiday here to see the beautiful nature. In the same time, we've been aware that the G20 is happening here, you know, so it's a very good opportunity, I think, for the whole area to develop. I've heard that the main subject is the tourism, so yeah, so very nice. I'm Zuzana. And I am from Poland. And you are from Poland? Yes, Poland. Yes, and I am first time here in this country. So, what can I say? What are your experience, first-hand experience? Please share with our viewers. There's a lot of people here, and it's a safe place because it's a lot of police and something. So I feel safety and comfortable. So. Do you recommend Kashmir to Poland people? Yes, I recommend the Kashmir. So you should come here and try this local eat and local attraction here. Thank you. तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये कितने खुश हैं, कितने खिले हुए ये चेहरे हैं और कोई पोलैंड से है, कोई यूनाइटेड किंगडम से है। और जिस तरह हमने कहा कि जो ये कंट्रीज थी कभी इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि कश्मीर विजिट ना करें, ये इनके लोगों के लिए सेफ नहीं होगा। लेकिन आज देखा जा रहा है कि G20 समिट में यही कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही है और यकीनी तौर पर ये खुश आइंद बात है कि ये कंट्रीज जो है G20 समिट में पार्टिसिपेट कर रही है और वो भी कश्मीर में। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ मुदस्सिर कादरी, डल लेक, नेहरू पार्क, श्रीनगर। फिल्मसाज हुसैन खान ने कश्मीर में G20 सरबराही इजलास का खैर मकदम किया। खान ने कहा कि यह फिल्मसाजी में मकामी टैलेंट के लिए दरवाजे खोल देगा। खान ने कहा कि समिट कश्मीर में भी हॉलीवुड का रास्ता साफ करेगा।
हम इस वक्त मौजूद है ऐतिहासिक डल लेक में और खूबसूरत नज़ारे जो यहाँ है वो अक्सर फिल्मों में फिल्माए गए हैं और यहाँ पर काफ़ी फिल्में जो हैं वो शूट हुई हैं। तो जिस तरह से G20 समिट में जो फिल्म मेकिंग पॉलिसी जो है उस पर तबादला ख्याल हुआ और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड को भी यहाँ की जानिब रागिब किया जाएगा। तो हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए मौजूद है हुसैन खान साहब जो कि कश्मीर के फर्स्ट फिल्म मेकर है और ये G20 के भी एक डेलीगेट हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से कल से ये इजलास जारी है और मेन फोकस जो है वो फिल्म टूरिज्म पे भी किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है जो इतना बड़ा इवेंट हमारे इस कश्मीर में हो रहा है। और उससे बड़ी बात ये कि लोकल हमारे जैसे फिल्म मेकर्स को भी इसमें आने का मौका दिया गया। हालांकि मेरे अलावा बहुत कम लोग थे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए। यहाँ पे बात हुई, अच्छे अच्छे ख्यालात एक दूसरे के साथ हमने शेयर किए। तो मैं ये कहूंगा कि इस पॉलिसी का जो फिल्म पॉलिसी है इसके लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड यहाँ आएगा, फिल्म शूट करेगा, उसको एनकरेज किया जा रहा है। एंड दिस इज एन वेरी, मैं कहूंगा कि बहुत खुशी की बात है हम कश्मीरियों के लिए कि ऐसा इवेंट यहाँ पे हुआ है। अगर फिल्मों की बात की जाए तो अभी इस साल जो देखा गया कि बूम एक देखने को मिला, न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडियन मूवीज भी यहाँ पर शूट हुई और काफी जो मंजे हुए सितारे हैं, संजय दत्त साहब हैं, शाहरुख खान हैं, वो यहाँ पर आए और उनके साथ आपने जो अपना एक्सपीरियंस है शेयर किया। तो इस G20 समिट का क्या उस सब पे असर पड़ेगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हॉलीवुड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आगे? जहां तक मैंने यहाँ कल देखा, जिस तरह के लोग और बड़े बड़े लोग आए और जिस तरह से उन्होंने आश्वासन किया कि बहुत यहाँ पे किया जाएगा, शूट किया जाएगा और फिल्म टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा, तो मेरा तो बस एक ही कहना था और अभी भी कह रहा हूं कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी नींव हमने बड़ी मेहनत से डाली है, उसको बूस्ट किया जाए, उसको एनकरेज किया जाए, उसे आगे बढ़ा जाए, ताकि जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो फिल्म शूट करने आए, चाहे बॉलीवुड से आए या हॉलीवुड से आए, उनको कोई दिक्कत का वो ना हो। यहाँ पे जब एक एस्टैब्लिशमेंट होगी, एक फिल्म इंडस्ट्री होगी, तो नेचुरली उनको भी काफी मदद मिलेगा। कि अगर हम यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव लोकेशंस, वी हैव टैलेंट, सब कुछ है। ऑल वी नीड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करना है, जिसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए और टैलेंट और यहाँ के टेक्नीशियंस का कोई ये नहीं है। आप अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही देख लीजिए, पुराने जमाने से लेकर अब तक कितने कश्मीरियों ने कंट्रीब्यूट किया है और इस पे फोकस होना चाहिए। इस पे फोकस हो गया तो फिल्म टूरिज्म तो होगा ही होगा। फिर बिल्कुल, बेशक यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करने की जरूरत है, ये कहना है हुसैन खान साहब का, ताकि यहाँ का जो लोकल टैलेंट है वो भी निखर जाए, उनको भी मौके मिले। और G20 समिट से यही उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ का जो लोकल यूथ है उसको एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा और दूसरा यहाँ की इकोनॉमी जो है वो फिल्म टूरिज्म के तनाजुर से भी बिल्डअप हो जाएगी। जहांगीर अजीज के साथ मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 JKLH, डल लेक, श्रीनगर। शिकारा वाला अब्दुल रजाक ने गैर मुल्की मंदुबीन को शिकारा की सवारी कराई। अब्दुल रजाक बॉलीवुड की कई फिल्मों में शिकारा वाला के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने G20 सरबराह इजलास का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे फिल्मी सयाहत को फरोग मिलेगा। सरकार का दावा है कि G20 समिट से यकीनी तौर पर कश्मीर की सूरत जो है वो बदल जाएगी और यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों की भी उम्मीदें उससे वाबस्ता है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि G20 समिट में जो डेलीगेट्स आए, जो मंदुबीन आए हैं, उन्होंने इन खूबसूरत जो डल लेक का या यहाँ के खूबसूरत जो नज़ारे हैं उससे वो लुत्फ अंदोज हुए उन नज़ारों से। और यहाँ के जो शिकारा राइडर्स हैं उन्होंने वो शिकारा राइड भी कराई उनको, और अक्सर डेलीगेट्स जो है इन्हीं शिकारा में से उन्होंने वो राइड की और ये खूबसूरत जो डल लेक के नज़ारे हैं वो एंजॉय किए। और हमारे साथ एक फेमस पर्सनालिटी है यहाँ की, अब्दुल रजाक साहब। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कल आपने शिकारा राइड कराया, जो डेलीगेट्स आए हैं G20 समिट के लिए, तो कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो डल लेक है ये शांत है, ये देखिए शांति है, बहुत
अच्छी से सजा के रखा है। डल लेक कल तो हम गया था, बहुत शिकारा राइड किया, वो बहुत खुश हो गया। जितने G20 वाला यहाँ से कश्मीर में आया है वो तो बहुत खुश हैप्पी हो गया है, बहुत खुश है। उसने देखी है यहाँ का डल लेक की सफाई देखी है, यहाँ के लोगों को खूबी देखी है, यहाँ के शिकारा चलाने का मजा आ गया, उन लोगों को बहुत मजा आ गया। और आप बताइए, जिस तरह से फिल्म की बात हो रही है, फिल्म पॉलिसी जो सरकार ने मुरतब की, और ये भी सुनने में आया है कि काफी फिल्मों में आपने जो है असिस्ट किया है उनको, और आपका शिकारा जो है, आप शिकारा वाले के रोल में दिखे हैं काफी फिल्मों में, और फिल्मों से आपकी काफी दिलचस्पी है, वो जानना चाहिए। देखिए सर, मैं तो बचपन से ही इन चीजों को बहुत शौकीन था। मैं इन चीजों में शिकार है, और तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अजय उठ कर, शम्मी कपूर साहब का, अजय उठ कर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाइए। हाँ जी, वो राजेंद्र कुमार के साथ बेदर्दी वालमा तुझको मेरा मन याद करता है। यहाँ से ये जितने भी गाने थे, जितने भी हमने काम किया, बहुत मजा आ गया। तो आप चाहते हैं कि वो दिन फिर से लौट आए, जिस तरह से पहले देखा जा रहा था कि हिंदी सिनेमा ज्यादा यहाँ कश्मीर में शूट करता था, और बीच में एक पीरियड आया कि वो सिलसिला बंद हो गया। G20 क्यों है सर? G20 इसीलिए है, यहाँ का कुछ रोजगार बढ़ रहा है, जहाँ यहाँ का सब कुछ बढ़ेगा, यहाँ कुछ फिल्मों जितने भी इंडस्ट्री है वो तो दोबारा आएगा सर, इंशाल्लाह आएगा सर। अब इनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने फिल्म पॉलिसी बनाई है और उसके बाद G20 समिट का होना यकीनी तौर पर एक अच्छा और खुश आइंद पहलू है, और यकीनी तौर पर वो दिन लौट आएंगे जब यहाँ पर फिल्में शूट हुआ करती थी। जहांगीर अजीज के साथ मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18, डल लेक, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज ने आज G20 की तकरीबात के सिलसिले में श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर के गुलकारों ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दी। इस मौके पर कल्चरल एकेडमी के इंचार्ज डिवीजन ऑफिसर फारूक अनवर मिर्जा ने कहा कि हम काफी खुशकिस्मत हैं कि श्रीनगर G20 इजलास की मेजबानी कर रहा है। हमारे फन और सकाफत को अब आलमी सतह पर रसाई हासिल होगी, और हमें उम्मीद है कि 30 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में थिएटर कल्चर दोबारा जिंदा हो जाएगा। देखिए, पहली बात यह है कि कश्मीर ज़रा इस मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि G20 का ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे। इससे सिर्फ आर्ट कल्चर को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पूरी कम्युनिटी को, पूरे स्टेट को, पूरे इंडिया को इसमें फ़ायदा है। इसमें टूरिज्म डेवलपमेंट है, आर्ट का है, बाकी चीज़ों का ये है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमें मौका मिला कि हमें मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ, और हमें चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज का प्रोग्राम जो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम चाहते हैं कि अपने सकाफत को, अपने कल्चर को रियासत और मुख्तलिफ रियासतों तक और मुल्क से बाहर तक पहुँचाया जा सके, और इसकी तशहीर की जा सके, और कश्मीर की मेहमान नवाजी जो है, यहाँ का जो यूनिक कल्चर है, यहाँ की जो बिल्कुल मुनफरिद सकाफत है, उसको हम दूसरे लोगों को दिखा सकें, उन तक अपनी मोहब्बत का पैगाम जो है वो पहुँचा सकें। G20 के मंदुबीन मशहूर मुगल गार्डन्स का कल दौरा करेंगे। मंदुबीन हाल ही में तज़ीन नौ करदा पोलो व्यू मार्केट का दौरा करेंगे। ये मार्केट सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज बन गया है। इस ब्रिटिश एरा मार्केट में दस्तकारी और हैंडलूम की बहुत सी दुकानें हैं, और दुकानदार पर उम्मीद है कि दुनिया भर से आने वाले G20 के मंदुबीन इस बाजार में कश्मीर के हकीकी जौहर को देखेंगे। लाइव म्यूजिकल बैंड सामीन को महसूस कर रहे हैं, और पोलो व्यू मार्केट मंदुबीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है।
कश्मीर की आबो हवा और यहाँ की ज़ियाफ़तों को चखने के बाद कल G20 डेलीगेट्स का सफ़र इसी मार्केट में, पोलो व्यू मार्केट में इख्तिताम को पहुँचेगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि जब यहाँ से G20 डेलीगेट्स जाएंगे और अपने अपने मुल्कों में पहुँचेंगे तो कश्मीर का एक विरसा, कश्मीर का एक एहसास और कश्मीर की एक रूह लेके जाएंगे। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जहांगीर अजीज के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले G20 वर्किंग ग्रुप के इजलास का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर सरदार मनजीत सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस इजलास से कश्मीर की सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडे का खात्मा होगा। पिछले काफ़ी अरसा से विदेशों के जो उनकी टूरिस्ट एडवाइजरी थी उसमें जम्मू कश्मीर में उनको ये एडवाइस किया गया था कि यहाँ वो ना आए। अब ये जो समिट यहाँ हो रही है तो इससे मुझे लगता है कि वो जो डर खौफ उनका जो माइंड सेट है विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर वो चेंज होगा। इससे टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा होगा और जब टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा टूरिज़्म के हवाले से और कल्चरल के हवाले से। यहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि जो ये इम्प्रेशन बाहर दिया जाता था कि जम्मू कश्मीर में बड़ी मिलिटेंसी है, लोग जो हैं वो मिलिटेंटों को सपोर्ट करते हैं, वो जो हैं वो सब झूठी साबित होंगी और जम्मू कश्मीर अमन की तरफ जो बढ़ रहा है ये G20 की इस मीट से जो है ये साबित हो जाएगा। सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि मुस्तकबिल में बॉलीवुड से मजीद फिल्म प्रोड्यूसर्स यहां राग़िब होंगे और मैं समझता हूं कि जो 90 से पहले अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो प्रेफर कश्मीर को ही करती थी। इसी बेल्ट में जम्मू कश्मीर खिते में ही इंडस्ट्री जो है आती थी, लेकिन जब मिलिटेंसी 90 के बाद शुरू हुई तो वो लोग यहाँ से चले गए। अब ये अच्छी बात है, वो आएंगे तो यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा और मैं तो चाहूँगा कि विदेशों से भी हॉलीवुड के लोग भी यहाँ आए और वो भी यहाँ आके फिल्में शूट करें, जिससे जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है वो दुनिया को दिखे। एक मैसेंजर ऑफ पीस है। ये जम्मू में भी होनी चाहिए थी, वो मिस नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा है और उससे अच्छा मैसेज जाना चाहिए। पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क का कोई अधिकार नहीं, इसलिए एक अच्छा मैसेज जाए वो हम भी चाहेंगे, सारा देश चाहेगा। उसके लिए तो बिल्कुल हम खड़े हैं और हम चाहेंगे कि कश्मीर से, जम्मू से, लद्दाख से अच्छा मैसेज जाए, हिंदुस्तान से अच्छा मैसेज जाए। हिंदुस्तान हमेशा भाईचारे और अमन और उसके सुगंध जो है वो फैलाता रहा है। G20 इजलास से सयाहत, दस्तकारी, बागबानी और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर के फनकारों को भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू के सीनियर फनकारों ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो कभी फिल्म सनत के लिए जन्नत था, दुनिया भर के फिल्मसाजों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की पूरी सलाहियत रखता है, जिससे जम्मू कश्मीर के फन और फनकार को भी फरोग मिलेगा। कश्मीर वही है जो आज से 30-40 साल पहले होता था, जहाँ पे कोई भी ऐसी फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी नहीं होती थी जिसमें कश्मीर में एक गाना शूट नहीं होता था या कश्मीर की सीनरी नहीं होती। वो वही कश्मीर है, आज भी वही कश्मीर है, मगर बीच कश्मीर जो है बाकी देश के साथ इंटीग्रेट हो गया है। और ये जो G20 की अब मीटिंग हो रही है यहाँ पे, उसमें 20 ममालिक से रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। वो यहाँ आकर इसकी खूबसूरती देखेंगे। बहुत सारे उनमें से ऐसे होंगे जिनने पहली बार कश्मीर देखा होगा, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इससे महजूज ना हो, इससे खुश ना हो, इसको देखकर इम्प्रेस ना हो। जम्मू और कश्मीर की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त आर्टिस्ट्स की जो G20 में पार्टिसिपेट कर रही है कश्मीर के अंदर,
और हम कोशिश कर रहे हैं कि बस बहुत जल्दी ही जम्मू में भी हम जो है इस तरह की एक अच्छी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और तमाम जगह और पेरिफेरीज़ में जाया जाएगा। तो इससे तो आर्टिस्ट्स का बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है और हमारी कोशिश यही है कि जो भी आर्टिस्ट्स हों, सिंगर हों, चाहे दूसरे लोग हों, तो उनको जो है इसमें शामिल किया जाए। G20 की पॉलिसी में है शायद कि टूरिज़म को बड़ा प्रमोशन मिलेगा, टूरिज़म के साथ साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी उसमें प्रमोशन मिलेगा और बाहर से फिल्म मेकर्स आएंगे यहाँ पे, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि यहाँ पे अभी लोग नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है G20 के सम्मेलन के बाद बाहर से भी हॉलीवुड के भी टीम आएगी यहाँ पे। देखिए, एज एन आर्टिस्ट मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा है ना कि कितनी फिल्म्स आई हैं, PVR केसी में लगी हैं और हमारी डोगरा अपने रीजन की फिल्म्स लगी हैं, तो ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरा जो G20 है वो मुझे लगता है हमारी JKUT को थोड़ा रीच देगा। श्रीनगर में जारी G20 समिट पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लोगों ने कहा कि G20 इवेंट से मईशत को फरोग मिलेगा और आने वाले मंदुबीन दुनिया के लिए कश्मीर के सफीर होंगे। वो वादी की खूबसूरती और सयाहत के बारे में लोगों को बताएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अब रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। G20 का जो यहाँ इजलास हो रहा है, ये इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर की खूबसूरती इस G20 के इजलास की वजह से, जब ये मुंदबीन रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने मुल्क में जाएंगे, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को ये प्रोपोगेट करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर का जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है, जो टूरिज्म की है, वो इससे प्रमोट होगी। यहाँ से टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, यहाँ के ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार फराहम मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में जो वाकई आज अमन की राह पर गामजन है, जो जहां चारों तरफ आज खुशहाली और अमन आपको दिखाई दे रहा है, बल्कि ये जो है जम्मू कश्मीर आगे भी बुलंदियों को छूकर जो है जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनने वाला है। जम्मू कश्मीर ही इसके लिए चुना गया कि मेज़बानी के लिए। ये हमें बहुत ही बड़ी, हम खुशकिस्मत वाले लोग हैं कि हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारी टूरिज्म में ग्रोथ हो जाएगी और ट्रेड में ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो बहुत से बच्चे ऐसे नशों में लगे हुए हैं कि उनको कोई जॉब है नहीं, इससे उनका जॉब भी खुल जाएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिसने ये G20 यहाँ पर इसकी कन्वेंशन लगा दिया और हमें बहुत खुशी हुई है कि हम इसके लिए चुने गए हैं। अगर हम 2008 से देखें तो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ऐसी तस्वीर दर्शाई बाहरी मुल्कों में कि यहाँ पे हालात कुछ इस तरह बनाए गए, एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह क्रिएट किया गया कि लोग जो है वो परेशान थे, ट्रेड पूरा ठप बैठा था। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की भागदौड़ वापस संभाली, तब से अगर हम देखें तो ट्रेड में भी वापसी आई। आज G20 का इजलास यहाँ पे हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे टूरिज़्म फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। उससे जो है कहीं ना कहीं सारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर जो है J&K के रीढ़ की हड्डी है। इससे कितने लोग चलते हैं, घोड़े वाले हो, ट्रैवल एजेंसीज हो, ड्राई फ्रूट हो, कश्मीर आर्ट हो, ये सब जो तबके हैं वे वापस आएंगे और इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा। G20 को लेकर टंगमर्ग में 20 ममालिक के कौमी झंडे नस्ब किए गए हैं। ये देखकर लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। गुलमर्ग जाने वाले सयाह और मकामी लोग इस मकाम पर रुककर सेल्फी लेते हुए देखे जा सकते हैं। गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोगों ने G20 के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि इस इजलास से सयाहत को मजीद फरोग हासिल होगा। टंगमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। बहुत खुशी हुई है कि आज बहुत सालों से है, अरसों से ये G20 की जो मीटिंग यहाँ पे हमारे इंडिया में हुई है, अभी बहुत सारे ममालिक इसमें जो शिरकत कर रहे हैं। हमें अच्छा लगा कि टूरिज़्म को फ़रोग मिलेगा। यहाँ पे हर जगह पे जो J&K में टूरिज़्म है उसको फ़रोग मिलेगा और हमें अच्छी सहूलियत यहाँ पे। जब यहाँ फॉरेन कंट्री से यहाँ पे जो ममालिक आएंगे, टूरिज़्म के मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे, वो इस चीज़ को देखेंगे, मद्देनज़र रख के देखेंगे कि टूरिज़्म के जो इस तरह के जो हालात हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और आज यहाँ पे जो गुलमर्ग में अभी जो आने वाले हैं टूरिज़्म के यहाँ पे मिनिस्टर्स आने वाले हैं, तो वो ये चीज़ें देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा इसमें कि टूरिज़्म डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे।
तो जाने का प्रोग्राम है, अभी कहा जा रहा है मुलतवी है, मगर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस तरह यहाँ पे ये जो सेल्फी पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया गया है बड़ा अच्छा है, और सयाह जो हैं वो यहाँ पे रुकते हैं और फोटोग्राफी करते हैं, मुकामी लोग फोटोग्राफी करते हैं। तो इको टूरिज्म है, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, और इसी तरह फिल्म टूरिज्म जिसे हम कहेंगे, इन मुद्दों पे वहाँ पे तबादला ख्याल होगा और किस तरह कश्मीर के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जाएगा और टूरिज्म को मजीद प्रमोट किया जाएगा, मजीद उसको उसमें बढ़ोतरी लाई जाएगी, ताकि इंटरनेशनल नेशनल लेवल का टूरिज्म जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फरोग होगा और अच्छी मैसेज दुनिया के सामने जाएगी। जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन, तंगमर्ग। G20 के हवाले से जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी जश्न का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में स्कूली बच्चों के लिए योगा का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें टहा तालीमी जोन के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस योगा प्रोग्राम में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के माहिर योगा ट्रेनर ने बच्चों को योगा के फायदे बताए। महकमे के जोनल ऑफिसर टहाब मंजूर अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से स्कूली बच्चों को योगा की तरफ माइल किया जा रहा है, ताकि बच्चों की नशोनुमा में इजाफा होने के साथ बच्चे मंशियात जैसी लत से दूर रहें। हमारी मुल्क को G20 की प्रेसिडेंसी हासिल है। आज हमारा मुल्क G20 की, जिसमें हमारा वेन्यू है कश्मीर, इस सिलसिले में हमें कैलेंडर दिया गया है, ये स्पेशल कैलेंडर दिया गया है G20 के बारे में। इस सिलसिले में हमें भी यहाँ ज़िला पुलवामा में 8 जोन है, 8 जोन में से टहाब भी एक जोन है। हमें ये योगा की एक्टिविटी दी गई थी, इसी G20 के सिलसिले में आज ये एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं। G20 चल रहा है, इसके लिए भी हमने ये प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे हम जिस्मानी तौर भी फिट रहते हैं और फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, और हम जब पढ़ाई करते हैं हम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं, और जब हम पढ़ाई करते पढ़ाई भी हम अच्छे से कर पाते हैं, और जो ड्रग से हम दूर रहते हैं। G20 समिट हो रहा है इस वक्त हमारी वैली में, तो इस हवाले से लोग बच्चों में एक तो बेदारी कर रहा है सेलिब्रेशन के साथ साथ, और साथ साथ से बच्चों को, छोटे बच्चों को योगा की तरफ माइल करने के लिए ये एक बेहतरीन पहल है। न्यूज़ 18 के लिए लाशीपुरा पुलवामा से मैं बिलाल खान। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज अनंतनाग और नेहरू युवा केंद्र अनंतनाग के इश्तराक से आज यहां पंचपुरान अमृतकाल युवा उत्सव के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ सतहों पर अपने हुनर और फन का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। डीसी अनंतनाग डॉक्टर फखरुद्दीन हामिद ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र मोहम्मद खलील मीर और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बॉयज अनंतनाग प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद इस मौके पर मौजूद रहे। हमारे यूथ एंगेजमेंट्स के लिए, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। साथ में ही इसका थीम G20, जिसका सेशन अभी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का श्रीनगर में हो रहा है, उसके पहलू को भी टच किया जा रहा है। ये दिखाता है कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के यूथ करंट इवेंट्स के साथ भी जुड़े हैं। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद सारे ऑर्गेनाइजर्स को, सारे पार्टिसिपेंट्स को। और जैसे कि मुझे बताया गया है कि ऐसे इवेंट्स हम सारे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट करेंगे आने वाले समय में, और जो मैसेज है या जो थीम्स है उसको और एक्सपेंड करेंगे, चाहे नेशनल यूनिटी का हो, इंटीग्रिटी का हो, चाहे जो हमारे प्रशासन के प्रोग्राम में चल रहे हैं नशा मुक्त अभियान, जिसमें यूथ का बहुत अहम रोल है, वो एज साथी बन सकते हैं, वो एज एम्बेसडर्स बन सकते हैं इस मिशन के, या स्वच्छता का मिशन हो, या अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो कॉलेज गोइंग किड्स है उनने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो एनरोलमेंट कैंपेन चली जिले में। तो मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स और कंटिन्यू करेंगे हम, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे सारे प्रिंसिपल साहिबान, हमारे डीडीसी के प्रिंसिपल साहब, युवा केंद्र के जो फैकल्टी है, सब मिलकर इसको आगे लेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज कुलगाम पुलिस ने मीर बाजार थाने के हदूद में आने वाले इलाकों में चेकिंग की। पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर हाईवे के करीब कई नाके कायम किए। G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के चलते कुलगाम पुलिस ने कौमी शाहराह के अलावा जिला सतह पर भी सिक्योरिटी मजबूत की। एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने, जबकि उनकी निगरानी में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी और हर आने जाने वाले से पूछताछ भी की गई। खैर मकदम है, पुंछ की प्रसन्नजीत कौर ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान में 11वां रैंक हासिल किया है।
प्रसन्नजीत कौर के घर में खुशी का माहौल है। लोग घर पहुंचकर प्रसन्नजीत के वालिदैन को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। प्रसन्नजीत के वालिदैन ने कहा कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में सख्त मेहनत करती थी। प्रसन्नजीत G20 इजलास के ज़िमन में फिलहाल श्रीनगर में है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बसे पुंछ शहर जो कि हमेशा गोलों और बम की आवाजों से गूंजता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और पुंछ के अंदर जो है अब खुशियों के ढोल नगारे बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है वो काफी आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं पुंछ की प्रसन्नजीत कौर के घर में, जिसने अपना IAS में 11वां रैंक लिया है पूरे हिंदुस्तान में, और आज उसके घर में खुशियों का माहौल है। जी बताइए, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। जहाँ तक उन्होंने सोचा था वहीं वो पहुंच गए, बस इससे ज्यादा खुशी हम क्या कह सकते हैं। बात करिए उनका कहना नहीं, बताइए कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है, बहुत इतनी खुशी है बता नहीं सकते हम। बाकी उसका टारगेट ही था अचीव कर रही है IAS का, उसने विजोड़ कोचिंग की है, बाकी सब प्रोफेसर का सब ठीक है। आपको सभी का शुक्रिया। समझो बचपन से हम जानते हैं उसको, तो वो बहुत दूर पहुंच गई है। आज वो प्रसन्नजीत जो कल हम अपनी गोदी में खिलाते थे, वो आज DC के रैंक में पहुंच गई है। इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। हर घर में भगवान ऐसी बच्ची दे। और मैं पुंछ के वासियों को, पुंछ के लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि बेटियां होने पर लोग दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की कोई बात नहीं है, बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, और इस बच्ची ने, इस हमारी बच्ची ने पूरे पुंछ का, पूरी फैमिली का नाम रोशन किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं पूरे पुंछ वासियों को, पूरे पीर पंजाब रीजन और जम्मू कश्मीर के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी बहुत छोटी सी उम्र में एक बच्ची ने जो डिग्री कॉलेज पुंछ से करेगी। मैं खाली उसका रैंक देखना चाहता था कि वो किस रैंक में आती है। वो कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी मेरे साथ टच में थी और कॉलेज में वो सबसे ब्रिलियंट थी। जब उसने कॉलेज में टॉप किया तो निर्मल सिंह साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने पूरे कॉलेज में एक प्रोग्राम करके उसको फेलिसिटेट किया। उसके पहले 1-2 नंबर कम आए थे, फिर उसने दोबारा रिवैल्यूएशन करके तो पूरे जम्मू प्रोविंस में वो सेकंड टॉपर आई थी। बतौर पेशे से टीचर होने के नाते से पिछले 45 साल से मैं बच्चों की खुशियों में ही रहा हूं, और हर साल इनका बेशुमार खुशियां हमें बच्चों की देखने को मिलती है। और इतनी खुशी होती है जब हम अपना ये एक अच्छा फसल देखते हैं, तो इससे ज्यादा कोई बड़ी खुशी नहीं होती। लेकिन जो मेहनत इस बच्ची ने की है, जो जिस लगन के साथ ये बच्ची पढ़ी है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और उसकी उस मेहनत का सिला इसको आज मिल गया है, तो अब मेरी खुशियों का अंदाजा मैं खुद नहीं लगा सकता, किसी को क्या बताऊं। देखिए किस प्रकार पूरा जो है परिवार खुश है और रिलेटिव खुश हैं। सब में यही कहना है सबका है कि ये पुंछ जो है अब बदल रहा है, और हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और पुंछ का नाम रोशन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में पुंछ ऐसे और कई चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं हुनरमंद हैं और इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नताइज जारी किए। सिविल सर्विसेज नताइज में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार ने शानदार मुजाहिरा किया है। प्रगमडूरा अनंतनाग के वसीम अहमद भट्ट ने इस बार UPSC इम्तिहानात में मुल्क भर में 7वां मकाम हासिल किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने इलाके का नाम भी रोशन किया। वसीम अहमद भट्ट ने दूसरी मर्तबा सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। इम्तिहानी नताइज बरामद होते ही पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखा गया। अहले खाना ने मिठाइयां तकसीम की। जम्मू कश्मीर से जुमला 7 उम्मीदवारों ने UPSC में कामयाबी हासिल की है। प्रसन्नजीत कौर ने मुल्क भर में 11वां, नितिन सिंह ने 32वां, नवीद एहसन भट्ट ने 82वां, मनान भट्ट ने 221वां, इरफान चौधरी ने 476वां, मानिल बजोत्रा ने 304वां और अंशु हंस ने 811वां रैंक हासिल किया है। ये एग्जाम क्वालिफाई किया, आज भी उसने क्वालिफाई किया। पहले उसका रैंक है 225, आज 7th रैंक आया है उसका। मैं बहुत बहुत खुश है। ये के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए, पूरे कश्मीर के लिए भी बहुत। अल्लाह ताला सुन सर साय आशस न यह लगन कुन
असली फी अल्लाह ताला सती तम खड़ी मेहनत तम सुन बोट तम सुन करम तम सुन फजल करम तो अमिस दितुन सह ताकत अमिस दितुन सह शौक तो ये शौक सह सठा मेहनत न शंगुन न करुन न कह मगर बहुत तमिस रब्बुल इज्जत कुन सठा शुक्र गुजार। एक निजी एजेंसी के जरिए किए गए सर्वे के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को ताज़ा तरीन यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक करार दिया गया। मुंतखब शहरों में फैले 310 तालीमी माहिरीन के साथ एक बुनियादी सर्वे किया गया। जवाब दहंदगान से कहा गया कि वो हिंदुस्तान की टॉप 20 यूनिवर्सिटियों को नामजद करें और उनकी दर्जाबंदी करें। वीक हंसार रिसर्च सर्वे के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले बेहतरी आई है। जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान इस कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। तलबा बरादरी का कहना है कि हालिया दिनों में जम्मू यूनिवर्सिटी में उनके तदरीसी माहौल में काफ़ी बेहतरी दिखाई दे रही है। किसी अदारे का हिस्सा होते हैं, मैं पिछले 5 सालों से इस अदारे का हिस्सा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बीइंग ए स्टूडेंट हमें इस चीज़ पे फ़ख्र करने की भी ज़रूरत है और इस चीज़ को एक बड़ा पॉम्प एंड शो के साथ बताने की भी आवश्यकता है कि हमारा जम्मू विश्वविद्यालय जो है वो हिंदुस्तान के आला तरीन जो अदारे हैं उनमें आता है। तो ये तो हम सब के लिए फ़ख्र की बात है और हम पूरे जम्मू के स्टूडेंट्स को, अपने जितने भी प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, इन सबको बधाई देते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये जो हमारे जम्मू विश्वविद्यालय की रैंकिंग जो दिन ब दिन अच्छी हो रही है, हम चाहते हैं कि ये और भी ऊपर हो। सर यहाँ की मैनेजमेंट और बहुत अच्छा एक पढ़ाने। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी की मल्टी डिसिप्लिनरी रैंकिंग में बेहतरी के लिए अपने तदरीसी अमले और तलबा को मुबारकबाद दी। वीसी ने कहा कि फैकल्टी, अफसरान, अमला, स्कॉलर्स और तलबा की मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से एक्सक्रेडिशन और रैंकिंग में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यह भी यकीन दहानी कराई कि यूनिवर्सिटी तालीम, तहकीक, आउटरीच, इंफ्रास्ट्रक्चर और तलबा की मदद के अपने मयार को बरकरार रखेगी और इसे मजीद बेहतर बनाएगी। को दिया है। इसके अलावा जो हमारी यंग फैकल्टी है उसको और मोटिवेट करने के लिए रिसर्च ग्रांट के अलावा सीड मनी दी गई 50,000 रुपये। टीचर्स को कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिंपोजिया ऑर्गेनाइज करने के लिए डिपार्टमेंट्स में, फिर अटेंड करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी में फिरकावाराना हम आहंगी पर यकीन नहीं रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस में इतने लीडरों ने मेरी आवाज को ठीक से नहीं सुना। उन्होंने मजीद कहा कि वो फिरकावाराना हम आहंगी पर यकीन रखते हैं, तमाम मजाहिब और जातों का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी पार्टी में फिरकावारियत पर यकीन नहीं रखने वालों को निकाल बाहर करने का पूरा इख्तियार है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पार्टी किसी एक जात, मजहब, इलाके, जिला, सूबे के लिए नहीं है। ये पार्टी तमाम जातों, मजाहिब से ताल्लुक रखती है। उधमपुर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वर्कर्स मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदू भाई और मुसलमान मेरे भाई हैं। उनकी पार्टी में मजहब की सियासत और नफरत की कोई जगह नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मिशन हर एक को बिला इम्तियाज इंसाफ फराहम करना है। किसी एक इलाके के लिए नहीं है, किसी एक प्रांत के लिए नहीं है, किसी एक जिले के लिए नहीं है, किसी एक ब्लॉक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। जिसको हर इंसान को, जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है, उसको हमने इंसाफ देना है, उसकी हमने रक्षा करनी है, उसको पानी, बिजली, रोजगार, रोटी देना है, चाहे उसकी शक्ल कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, उसका धर्म कैसा हो, ये औरत हो या मर्द। ये